students, today I'm going to explain you chapter 6 of class 2nd. The name of the chapter is festivals and celebrations. Okay, so what are so those festivals which you celebrate in your life and what other religions celebrate, these things we are going to study in this chapter. So let's start the chapter. So definitely we celebrate many festivals in our country. India is called land of festivals. India को land of festivals बोला जाता है because there are number of different kinds of religious people exist who have their own festivals, who have their own beliefs. Okay, so this is why India is known as land of festivals. Almost every day we have a festival. Okay, so that means we can say that today can have a festival of any religion. Okay, festivals bring brotherhood and unity in the society. ठीक है, यानी कि festivals क्या करते हैं? Festivals सबको एक पास लाते हैं. Festivals एक excuse देते हैं लोगों को पास में आने का, लोगों को से बातचीत करने का और कुछ celebrate करने का. ठीक है, festivals are of three types. Okay, so broadly we have classified festivals in three categories. First is religious festivals, harvest festivals and national festivals. Let's study all of them one by one. First is religious festivals. The festivals which are celebrated to certain people according to the religious customs are called religious festivals. ठीक है, so as the name is suggesting, religious festivals can have different different religions. Okay, so based on their religion of particular, that means I'm trying to say a particular religion have particular festivals. Okay, so here are some religious festivals celebrated in India. Okay, so particularly in India, Holi. First is Holi, which a particular Hindu religion follows. Okay, so let's study about it. Holi is celebrated by the Hindus. Okay, that means a particular Hindu religion follows this festival. Okay, Holi is also known as festivals of colors. Holi को festivals of colors बोला जाता है. As you can see in these images, they are playing with the colors, and this is why this is known as festival of colors. It is celebrated on the Purnima of Falgun month every year. ठीक है, यानी कि ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. On the night before Holi, ठीक है, यानी कि होली की एक रात पहले होलिका को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है. ठीक है, on second day people throw gulal and colored water on each other. ठीक है, यानी कि उसके अगले दिन जब होलिका को जलाया जाता है, उससे अगले दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं और एक दूसरे को कलर करते हैं. as you can see in the image. Okay, special sweets called gujia is prepared. ठीक है, यानी कि एक स्पेशल डिश होती है गुजिया जिसको प्रिपेयर किया जाता है हर घर में. ठीक है, नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा दशहरा. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड द डेमन किंग रावण. इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द नवरात्रि इन द मंथ ऑफ अश्विन. ठीक है, यानी कि दशहरा क्यों मनाया जाता है? देखो, हम हर फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है. ठीक है, जैसे कि होली के पीछे का रीज़न था, ऐसे दशहरा के पीछे का रीज़न है कि इस दिन राम ने रावण को मारा था. ऑन दिस डे एंड ड्यू टू रिमेम्बरिंग दोज that day we used to celebrate this festival. And why it is celebrated? When it is celebrated after Navratra in the month of Ashwin. Clear? Dashera is also called Vijayadashmi. ठीक है, दशहरा को क्या बोला जाता है? विजयदशमी भी बोला जाता है. The effigies of Ravan, Kumbhkaran, Meghdad are burned. ठीक है, इस दिन क्या किया जाता है? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जलाया जाता है. ऑन दिस डे दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल. और ठीक है, वेस्ट बंगाल के साइड में दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट की जाती है. नेक्स्ट वी हैव दिवाली. दिवाली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिस इज ऑल्सो इमेजेस शोइंग दैट so many lights around us, so many decorations with lights and diyas are glowing, due to which it is called as festivals of लाइट्स. क्लियर? इट इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज. ठीक है, यानी कि ये फेस्टिवल भी हिंदूज में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन अमावस्या ऑफ कार्तिका मंथ एवरी ईयर. ठीक है, यानी हर साल अमावस्या ऑफ कार्तिका के दिन को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज सेड दैट लॉर्ड रामा केम बैक टू अयोध्या फ्रॉम हिज एग्जाइल ऑफ 14 years ऑफ दिस डे. और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अयोध्या अपनी 14 साल के वनवास के बाद, 40 years ऑफ एग्जाइल के बाद वापस अयोध्या आए थे, ड्यू टू विच दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड. ओके, पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस. पीपल क्या करते हैं? अपने हाउस को क्लीन करते हैं और डेकोरेट करते हैं. डेफिनेटली फेस्टिवल्स पर किया जाता है. दे लाइट द अर्थन लैम्प्स एंड कैंडल्स एट नाइट. ठीक है, यानी कि वो अर्थन लैम्प्स जलाते हैं और कैंडल्स जलाते हैं रात को, और इसी वजह से इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है.
दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है, यानी कि गॉडेस लक्ष्मी की वो पूजा करते हैं एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं. दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल. चिल्ड्रन बोर्स एंड बर्न्स क्रैकर्स एट नाइट. बच्चे क्या करते हैं, रात को क्रैकर्स जलाते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट येस दिस इज यूज टू हैपन. नेक्स्ट इज ईद. ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, यानी ये मुस्लिम रिलीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं होली मंथ के, उसके बाद रमज़ान, जिनको रमज़ान बोला जाता है, और उसके बाद फिर ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल वर न्यू क्लोथ्स. पीपल क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं. दे ऑफर नमाज इन मॉस्क्यू, ठीक है, और नमाज में वो मतलब मस्जिद में जाकर वो नमाज ऑफर करते हैं. फूड एंड क्लोथ्स आर गिवन टू पुअर, ठीक है, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको कपड़े और खाना दिया जाते हैं. दे प्रिपेयर अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैया, ठीक है, और एक स्पेशल डिश होती है सेवैया जिसका वो प्रिपेयर करते हैं ईद फेस्टिवल पर, ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट ईद. नेक्स्ट फेस्टिवल वी हैव क्रिसमस. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, यानी कि ये क्रिसमस फेस्टिवल होता है जो कि हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. इट्स बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट, ठीक है, यानी कि ये क्यों मनाया जाता है, ये जेसस क्रिस्ट के बर्थडे के दिन मनाया जाता है. चर्चेज आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. चर्चेज को ब्यूटिफुली डेकोरेट किया जाता है. पीपल सिंग कैरोल्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स. पीपल एक कैरोल्स गाना गाते हैं, ठीक है, सिंग करते हैं और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं. पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री इन द हाउसेस. सेंटा क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं एज दीज टू चिल्ड्रन हैज डेकोरेटेड एंड वेटिंग फॉर द सेंटा, बिकॉज इट इज़ अ बिलीव फ्रॉम वेरी ऑल टाइम्स दैट सेंटा क्लॉज कम्स एंड गिव गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन. ओके, दिस इज अ हाइपोथेटिकल बिलीव. नेक्स्ट इज गुरुपुरब. गुरुपुरब इज द फेस्टिवल ऑफ सिक्स, ठीक है, गुरुपुरब एक फेस्टिवल है सिक्स का, सिख लोगों का. इट इज सेलिब्रेटेड टू मेक द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको 10 सिख गुरु दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इनके बर्थडे को के डेट को मार्क करने के लिए ये गुरुपुरब फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल डेकोरेट गुरुद्वारास, ठीक है, पीपल क्या करते हैं, गुरुद्वारास को डेकोरेट करते हैं. दे टेक आउट प्रोसेशंस. दे ईट फीस्ट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगार, ठीक है, लंगार एक जगह का नाम है जहाँ पर खाना प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते हैं अपने फेस्टिवल के दिन, ठीक है. तो ये थे हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हमने पढ़े, ठीक है. आप समझ गए होंगे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन सेलिब्रेट करता है, जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग होते हैं, तो सब पर्टिकुलर रिलीजन्स के अपने अपने पर्टिकुलर फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें रिलीजियस फेस्टिवल्स बोला जाता है. नेक्स्ट वी हैव हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. So the festivals which are celebrated when the crops are ready to harvest are called the हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ठीक है, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कब मनाया जाता है, जब जो क्रॉप्स होती है वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं, तो तब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को मनाते हैं, ठीक है. जैसे कि फर्स्ट आता है ओनम, ठीक है, ओनम इज द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरला. ओनम एक बहुत ज़्यादा कलरफुल फेस्टिवल माना जाता है केरला का. इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है. डेफिनेटली वी आर स्टडिंग देयर काइंड्स. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज, यानी कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि 10 डेज तक कंटिन्यूसली मनाया जाता है. People sing and dance. Definitely people are going to enjoy on this festival. बोट रेस इज हेल्ड ऑन दिस ओकेजन, और इस ओकेजन पर बोट रेस हेल्ड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोट रेस हेल्ड की गई है, ठीक है. कौन सा फेस्टिवल है ये, ओनम. कहाँ मनाया जाता है, केरला में, ठीक है. नेक्स्ट इज पोंगल. इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, यानी कि ओनम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल था और ये पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी, ठीक है, कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 डेज, यानी कि ओनम बनता था 10 दिन तक और ये बनता है 3 दिन तक, ठीक है, पोंगल. पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड मेक रंगोली ऑन द फ्लोर, यानी कि पीपल क्या करते हैं, अपने हाउसेज को क्लीन करते हैं अच्छे से, विच इज यूजुअली ऑन एवरी फेस्टिवल पीपल डू, and they are going to make rangoli as well. Okay, they make pongal rice on this day, ठीक है. पोंगल फेस्टिवल पर पोंगल राइस बनते हैं. Are you getting? They worship the rain god, sun god and cow as they together bring a god harvest of crops, ठीक है, यानी कि वो रेन गॉड और सन गॉड, रेन गॉड सन गॉड का मतलब है यानी कि जो बारिश होती है उनकी पूजा करते हैं, और जो सन है उसको उसकी तरफ देखकर उसकी पूजा करते हैं, ठीक है. और काव यानी कि गाय की भी यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें ही साथ में मिलकर हार्वेस्ट लाई हैं, ठीक है. और डेफिनेटली इट इज़ ट्रू फ्रॉम अ हाई एक्सटेंट.
नेशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ठीक है, यानी कि हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल्स देख लिए जो कि कब मनाए जाते हैं, जब हार्वेस्ट का टाइम आता है क्रॉप्स का, ठीक है। कौन कौन से देखे, ओनम देखे, पोंगल देखे, ठीक है। ओनम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओनम 10 दिन तक मनाया जाता है, पोंगल 3 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। These are some features we have studied, and now we are going to study about national festivals. So before starting it, I want to tell you the meaning of this word. National festivals are those festivals which the entire country celebrate. Okay. Just we have studied the religious festivals which not everyone celebrates, harvest festival which not everyone celebrate by the same method, but now this is national festival which entire country celebrate in the same manner. Are you getting? Let's study the definition as well. Festivals which are celebrated by all the people of the country together are called national festivals. Clear? India celebrates 3 main national festivals, and what are they? First is Republic Day. So Republic Day is celebrated on 26 January, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है हर साल। ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग एंड इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो लागू किया गया था और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिपब्लिक जो है बन गया था, क्योंकि आज तक भी जो इंडिया का सबसे ज़्यादा लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिली थी, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे क्यों रखा, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, लागू क्यों किया गया? क्योंकि बेटा 26 जनवरी हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट मानी गई है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी वगैरह, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो सब चाहते थे कि 26 जनवरी को हमें इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाया। हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, लेकिन भले ही हम ईयर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ओके, लेट्स स्टडी। ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड ऑन राजपथ इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इस दिन क्या किया जाता है, ग्रैंड परेड, यानी कि बहुत सारे लोग, एक ग्रैंड परेड बिठाई जाती है राजपथ में, और कहाँ पर होती है, न्यू दिल्ली के अंदर होती है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स टेक पार्ट इन दिस परेड, ये अलग अलग स्कूल के बच्चे इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी तो ये ग्रैंड परेड है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे विच आई वाज टेलिंग यू। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त को हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स व्हाई एवरी ईयर ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947, ठीक है, 1947 में जो हमारा इंडिया था वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन दिस डे, ठीक है, यानी कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट पर हर साल पोस्ट करते हैं, ठीक है। रेड फोर्ट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इन एवरी स्कूल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन दिस डे, ठीक है, हर स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिसेज में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है, इवन घरों में भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। गांधी जयंती, नेक्स्ट वी हैव गांधी जयंती। So Gandhi Jayanti is celebrated on the birthday of Mahatma Gandhi on 2nd October every year, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी के जो बर्थडे है वो 2 अक्टूबर को आता है, तो उसकी याद में हम गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, पता है गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। भाई इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे इंडिया के लिए और इनफैक्ट और लोगों के लिए भी किया है, but particularly he is the most great person and that's why he is known as the father of the nation. The great leaders, Prime Minister, President of India pay homage to Gandhi as his samadhi at Rajghat in New Delhi, ठीक है, यानी कि जो ग्रेट लीडर्स है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये करते हैं, ये गांधी जी की जो है राजघाट न्यू दिल्ली में समाधि निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, 3 नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा जो कि एंटायर कंट्री सेलिब्रेट करती है। फिर हमने पढ़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में, ठीक है, पोंगल और जो दूसरी तमिलनाडु पोंगल और जो ओनम केरला में होती है उसके बारे में पढ़ा, और फिर कुछ हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स बने, क्रिसमस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।